Billionaire Mindset book released by Vital Vishwa Publications in New Delhi. Report by S.S. Dogra, Delhi. Friends, as you know, that it's old saying that books are the best friends. Yes, no doubt about it. The good books can transform the individual and lead him or her to greater height. Writing a book is not an easy job, and compile a book of 39 top Indian writers, not less than an achievement. It's yet another feather to the cap of Vital Vishwa. On Sunday, the 13th September 2020, a book release program was organized by Vital Vishwa Publication at SK Crown Banquet Hall under the guidance of Vishwa Mohan Singh, Director of Vital Vishwa Publication, and author, TEDx speaker, author Sari. The personal inspirational stories of 39 prominent Indian writers of India: A.C. Sood, Anjana, Vinod, Ankita Sood, Arun Kumar Singh, Ashish Juneja, Ashok Goyal, Ashok Gupta, AQCS, author Sari, Dr. Bela Mohan, Dr. Deepika Bhatia, Dharmendra Kumar, Dipanshu Vijay, Ghazal Luthra, Harsh Verma, Hanipal, Ishita Sen, Jasmine Dawada, Kulvinder Kaur, Leone D. Mello, Mala Bharti, Mehul Gaglan, Mohit Chukral, Monica Ohri, Naveen Kumar Verma, Nishikant Chandra, Prashant Chakrabarti, Prashant Saini, Pratap Velavalluri Shekhar, Premlata Singh, Ravindra Singh, S.K. Sethi, Samina, Sandeep Goswami, Sandeep Gupta, Shweta Nayar, Sujit Kumar Jha, Sur Khurana, Sudesh Chakrabarti, Yati Raj Agrawal were compiled in the Billionaire Mindset book. Advocate Subhash Sharma, writer love coach Aira Kaur, radio wala Manish Azad, Gaurav Jain also appreciated Vishwa Mohan Singh, the publisher Vital Vishwa Group, and writer motivational speaker for this opportunity. Let us move to the venue where this book launched. वो भी आ गए हैं। बस 5 मिनट के बाद आप लोगों को इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ मैं। अभी आई थिंक लव LOVE प्यार का मतलब क्या है, मायने क्या है? क्या हम सब जानते हैं कि प्यार का मतलब क्या है? आज हमारे बीच एक सेल्फ लव कोच, आई थिंक आपने पहली बार नाम सुना होगा। प्यार करना सबको आता है, बट प्यार करे कैसे, ये कोई सिखाने वाला अगर हो तो इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। तो हमारे बीच हैं प्रिंसेस आयरा, प्लीज कम टू द स्टेज। She is known as self-love coach, and again she has written a book on that also. तो आप लोगों को अब प्यार कैसे किया जाता है ये सिखाएंगे। प्लीज स्टेज इज योर्स। थैंक यू। So I think he introduced me very well. So कितने लोगों को खुद से प्यार करना आता है? हम तो मानते हैं कि आता है, पता नहीं। That's a very valid point कि हम मानते हैं हमें आता है, बट आता है या नहीं पता नहीं। तो कैसे पता लगेगा खुद से प्यार करते कैसे हैं? अच्छा, पहले आपने बताया किसी और से प्यार किया है? कितने लोगों ने किसी और से प्यार किया? किया है? कैसे पता लगा? यहाँ कुछ होता है, अच्छा लगता है।
वो तो एसिडिटी में भी होता है। कुछ होता है। एसिडिटी वाला तो नहीं ना, बीपी वाला तो नहीं, हार्ट अटैक वाला तो नहीं। बट कैसी फीलिंग होती है? फीलिंग अच्छी फीलिंग अच्छी होती है। फीलिंग एक्सप्रेस नहीं हो पाती। एब्सोल्युटली, वो फीलिंग एक्सप्रेस नहीं हो पाती। तो क्या आपको अपने लिए वैसी फीलिंग आती है रोज? कितने लोगों को आती है? कभी कभी मैंने रोज बोला, हर मोमेंट पे बोला, हर मोमेंट पे वैसी फीलिंग आती है अपने लिए। अगर नहीं आती तो कोई बात नहीं, तो हम सीख सकते हैं ना। That is what the art of loving yourself. And actually, art of loving yourself is not only about getting bad feelings only. It's about कि आप अपने आप को हर लेवल पे अपने से अपने आप को हमेशा देखो बेटर, और अच्छा और अच्छा और अच्छा। Self love is not only about just a cuddly love, a pleasureful love. It's also about caring for yourself, taking responsibility of yourself, being disciplined, and being amazing always. बहुत इंपॉर्टेंट है खुद से प्यार करना, क्योंकि जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगे तो किसी और से कैसे करेंगे? Let me give a very good example. Especially females at home, sometimes they say कि मुझे मेरे लिए टाइम नहीं है, या मेल्स भी अपने बिजनेस में बोलते हैं कि that I don't have a time for myself. I'm working. I have to take care of my family. I have to take care of my children. Everything. मतलब अपने आप को इतना प्राउड दिखाना चाहते कि मैं सबका ध्यान रखता हूँ, और घर पे वाइफ दिखाती है मैं सबका ध्यान रखती हूँ। Isn't it? And उनको अगर बोला जाए आप अपना ध्यान रखते हैं, उसके लिए टाइम का है हमारे पास। अगर वो करने लग जाएंगे तो बाकी काम कैसे करेंगे? बट अ मैटर ऑफ फैक्ट, एक चीज बताएं, जिस दिन आप बीमार हो जाएं उस दिन क्या होता है? क्या कोई दूसरा बंदा आपकी मदद कर सकता है? They can take care of you, but can they make you all right? कोई कर सकता है? उस वक्त क्या जरूरत है? डॉक्टर। कई बार डॉक्टर भी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं आजकल, तो बहुत टाइम इज लाइक मेनी पीपल आर सफरिंग एंड डॉक्टर आर नॉट एबल टू हेल्प। देन भगवान कितने लोगों का कनेक्शन है उसके साथ? डायरेक्ट नंबर है क्या? सो दैट वी कैन कॉल, एवरीबॉडी कैन कॉल, प्लीज हेल्प मी आउट। किस रूप में आ जाए? किस रूप में आ जाए? The fact is, वो तो सबके अंदर है ना। But are you getting connected to yourself? Because only you have the power. Only you have the power to connect with yourself and make yourself happy, lucky, go whatever you want to say. Only you. ये स्वर्गीय कौर है ऑथर, ये मेरी मेंटी है, तो ये इसकी एक फ्री कॉपी मैं आप सब ऑथर्स को विद ऑनर देना चाहता हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी। तो आप लोग प्लीज ये कॉपी या तो यहाँ कलेक्ट कर लीजिए या मेरे से वन ओवर ले लीजिए। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं विश्वा जी का धन्यवाद करूँगा, और आपको हैरानी होगी 3 महीने से मैं इनके टच में हूँ और पहली बार इनको यहाँ मिला हूँ। आज जो मैंने सुना हर किसी से बयान किया, मैडम मोनिका जी आपने इतना अच्छा बोला, सो नेचुरल, शैली तो खैर है ही कमाल। जिंदर जी ने सीक्रेट बता दी कि हमारे छिपी हुई है, सबने एक ना एक चीज ऐसी बताई। और ये नहीं कमाल के एनएलपी वाले इतनी अच्छी बातें करते थे, मैं तो हर चीज़ सीख रहा हूँ एक से एक बढ़ के। तो मैं तो सोच रहा था कि आज मिस करूँ, और आई एम वेरी ग्लैड दैट आई एम हियर। Good sir. शैली ने मुझे बोला और पहले कोई बोल चुका है कि टू बी ए गुड स्पीकर
one should be genuine, being himself. So I'm trying to be that. Great, sir. मुझे लिखने की आदत तो बहुत पहले थी, पर लिख के फाड़ के छोड़ देता था। Bishamit Paja, BNI Director, Noida. I was a member of BNI for 4 years. उन्होंने मुझे एक दिन आया ऑफिस में, कहने सुध यू राइट वेल, सो प्लीज टेक चार्ज ऑफ BNI मैगजीन नोएडा चैप्टर्स। तो मैंने वहाँ से लिखना शुरू किया। आर्टिकल लोगों से कम आते थे, तो आई बिकेम ए फैक्ट्री फॉर मैन्युफैक्चरिंग आर्टिकल्स। अरे वाह। वहाँ से मैं सीखा, और एक कोर्स अटेंड करते हुए मुझे किसी ने बोला कि मैंने कहा ऐसे ऐसे पूरा होता है और छोड़ देते हैं हम, तो डोंट लुक बैक, जस्ट गो राइटिंग। तो लॉकडाउन में जो हम कहते रहते हैं टाइम नहीं है, टाइम ही टाइम था, तो मैंने सुबह 5 बजे उठ के एक्सरसाइज वगैरह करके 6 से 9:30 तक कंप्यूटर में बैठ जाता था आपने और नावल लिखना शुरू कर। 28 मार्च से मेरे काम शुरू किया और मई जून में ख़त्म कर दिया। अब नावल क्या है, बिट्रेयल ऑफ द चाइनीज ड्रैगन। मुझे विश्वा जी ने बोला टाइम कम लेना, पहले आप बोल चुके हो, बहुत टाइम वेस्ट कर दिया लोगों का। तो इन दिस नावल अभी किसी दोस्त ने बोला कि हम लोगों का एक्सपीरियंस ही इसमें सब में आता है। आपने बोला बदलिश है, वेरी गुड। वो वाकई सम आउट अदर इट कम्स इन, जैसे रोडा ब्रांड की किताब लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, इन्होंने फ्रीक्वेंसी की बात की। तो थ्रू दिस नावल, थ्रू शी जिनपिंग, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाइना, ही इज अ रावणा ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में लाइक्स अट्रैक्ट्स लाइक्स, तो वो चीज़ जो उसमें लिखी हुई है वो पेज नंबर 94 से 102 पेज तक हमने उसको डिस्क्राइब किया हुआ है कि कैसे ही इज मोकिंग द बिलियनियर्स ऑफ द टुडे कि आई एम होल्डिंग द होल ऑफ चाइना, यू आर टॉकिंग ऑफ मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ मनी, इट इज नथिंग व्हेन आई कैन ओन द होल प्लैनेट थ्रू इकोनॉमिक दिस थिंग। So why bother about billions and trillions? Stupidness. Mindset of mocking is trillion. The same way, so many facts are there. In 2008, there were hardly 2 companies in top 10 companies of the world in Chinese companies. In 2018, 5 or 6 companies were top 10 companies. By 2030, they were expecting that 9 companies, Chinese companies, will be top companies in the world, Chinese only. So these facts, and lastly, मुझे विश्व जी कह रहे हैं बंद करो प्लीज 2 मिनट अब जब पूरा करने दो, आपने खड़ा किया यार। अरे बिल्कुल आप बोल तो स्टेज आपकी है, कहने और करने में बड़ा फर्क होता है। तो जो एक किताब बहुत पहले पढ़ी थी मैंने, गेम ऑफ द फॉक्सेस, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में चाइना ने और जर्मनी was producing those things, some many other things which were on the drawing board of America because of spying activities. Same way China is doing today. They have all spies around the world in the biggest laboratories, in the biggest companies, and whatever they are producing, whether it is medicine or other things, they are producing in their country beforehand. So their planning is very huge, very big, very discreetly. They are just not showing off anything, but they are doing all these things. All you will find in novel. Romance is there, sex is there, entertainment is there. Whatever you feel like in a book, why people read books, it will be there. Thank you very much. मैं उन्हीं को बुलाना चाहूँगा, आप उनको पहले भी सुन चुके हैं और जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। उनकी जो किताब का शीर्षक है, टाइटल है, वो है बिट्रायल, धोखा, बिट्रायल ऑफ Chinese Dragon. Bitrayal of Chinese Dragon. So let's invite the stage, please do. This is a milestone. बीच में
आके माइक भरा सर स्टेज से और बंदा लेटने के लिए तैयार, और बंदा जब लेटने के लिए तैयार तो बंदा कहे कि स्टेज से और तो करना क्या है, आ गया जी अब मेरा काम हो गया। AIR-FM रेडियो 102.6 मेगा पर शनिवार की सुबह 7 बजे से 9 बजे तक रेडियो पर शोज करने वाला जो मनीष आजाद रेडियो वाला है वो आपके सामने खड़ा है। साहब कैसा दिखता है? सामने दिख रहा है साहब। रेडियो पर शोज करते हुए 18 साल हो गए और सभी कुछ देख लिया यहाँ पर। आज ये मेरा सौभाग्य रहा कि इतने बड़े बड़े लोगों को यहाँ पर सुना, अभी शर्मा जी को भी सुना, सूद साहब को सुना, अभी ये छोटा बाबू अभी आया था राजेंद्र, छोटा बाबू इसलिए मेरी उम्र तुम्हारे बेटा तुम ज्यादा होगी, बस शर्मा जी की कौम कम है मुझसे, मेरी थोड़ी सी ज्यादा है। कभी कभी कैसा होता है कि आप देखेंगे जिंदगी के अंदर आपके पास इतने सारे वाक्या होते हैं, कभी तो समय मिल जाता उनको बका इतना अच्छे से बखान कर सकते हो, लेकिन कभी कभी समय नहीं मिलता है कुछ कहने के लिए। I'm sorry मैं आपका नाम भूल गया हूँ। आयरा जी इतनी अच्छी बातें बताई कि लगाव क्या चीज है। हर किसी के मन में सबसे बड़ी खास बात है, सामने किसी इंसान को देख लो कि किसी खूबसूरत सी लड़की को देखते आपका जो लगाव है सब दूर हो जाता है, देखते रह जाता साहब ये लगाव है। एक बहुत सॉरी डोंट माइंड, मैं थोड़ा सा रेडियो पर बोलता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि लोगों को आपको एड्रेस कैसे करना है। आप किसी काले इंसान को साहब काला नहीं बोल सकते सामने खड़ा हो गया। आप किसी बेटे के साथ उसका फादर अगर कहीं निकल के जा रहे हैं, वो बहुत मोटे हैं, आप उसके सामने बोल के दिखा दीजिए अबे तेरे पापा को बोला नहीं साहब। तो क्या अगर हम काले को काला नहीं बोल सकते, मोटे को मोटा नहीं बोल सकते, क्या वहां लगाव कम है उस बच्चे का उस मां के प्रति? क्या बाप का लगाव कम है उसको वो सारी चीजें मुहैया कराने के लिए? 1% कम नहीं है साहब। उस जिसका रंग इतना डार्क है उस इंसान का अगर वो सामने एक बार खड़ा हो जाए और उसका बच्चा अगर रोटी मांगने के लिए तैयार हो जाए तो क्या उसकी मां उसको रोटी नहीं देगी? सबसे पहला काम होगा बिना ये सोचे कि मैं ईंट उठाती हूं, मैं सफाई का काम करती हूं, दूसरों के घरों में जाके काम करती हूं, तो जो लगाव है वो आपके लगाव अंदर से आता है साहब। 24 घंटे कौन अपने लिए सोचता है? आयरा जी ने बोला साहब मैं 24 घंटे सोचता हूं, लेकिन कभी कभी हालात मेरे ऊपर इतने हावी हो जाते हैं वो मार देते हैं मुझे, मैं नहीं सोच सकता फिर अपने लिए। फिर मुझे ध्यान आता है कि मेरी माँ के पेट में दर्द है, मुझे उसको हॉस्पिटल लेके जाना, मैं अपने लिए क्यों सोचूं? मैं 10 बार मेंटली रिपीट करता था कि व्हाट इज द क्वेश्चन व्हिच आई एम गोइंग टू आस्क, और जब मैं बोलने लगता था तब एकदम लड़खड़ा जाते थे मेरे से। एंड दैट पर्सन एंड द पर्सन हु इज स्टैंडिंग हियर, आई एम अ पब्लिक स्पीकर, आई हैव गिवन टॉक्स ऑन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स, एंड द ओनली थिंग which took me from there to here is to get rid of the fear. And if we can get rid of our fears and limited beliefs, we can do anything. तो public speaking में मैं शरीर जी का शागिर्द नहीं हूँ, परंतु मैंने जो कुछ सीखा है, जो कुछ पढ़ा है थोड़ा बहुत, उसमें ये कहा है कि if you have to speak publicly तो स्टोरी सुनाइए। तो उन्होंने कहा कि आप कोई भी स्टोरी, अपनी स्टोरी, किसी की स्टोरी, तो स्टोरी से लोग रिलेट करते हैं। तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। The story goes like this. There was a guy and he had a lot of money, but he didn't tell his wife and kids about that. But instead, he confided in one of his friends. One day he asked him to come to his house and he dug a pit in the veranda of his house, और उसमें उसने बहुत सारा सोना, बहुत सारा धन था, उसने उसको दबा दिया। और उसने अपने मित्र से कहा कि मैं बहुत बीमार हूँ, तो he had terminal cancer. He said I don't know how long I'm going to live. So once I leave, do not immediately tell my family, do not immediately tell my wife that I have this so much of this treasure buried inside our house. पर जब तुम देखो सही मौका हो, जब उनको इस खजाने की जरूरत हो, तब आप उनको बता दें। And in 6 months' time, he expired because he had terminal cancer. And then his family, his wife and kids, you know, they fell on bad times. So his wife tried to get a job, but she couldn't get a job, and they become really very, very poor.
And many months passed. And this friend, this guy, look, he was torn, he was in conflict. He said that I know that there's so much treasure buried right inside the house. And my friend's wife and his son, they are on such terrible times, they cannot even make ends meet. So should I tell? But he said, no, I gave my promise to my friend, so I'm not going to tell about the treasure. And one day, 1 year passed. And after 1 year, he was driving in his car and he saw his friend's son. He was scavenging trash, trying to find something to eat. And he said, I think now is the time that I should go tell my friend's wife about the treasure. So he went to his friend's wife. He said, you know what? So your husband, my friend, he confided in me that he had a lot of treasure. बहुत सारा धन सोना इत्यादि उसके पास थे, and he buried it in the veranda of your house. And you know what did she say? She said, I don't believe you. He was my husband. Why won't he tell me? He told you. So you were lying. There's no such treasure. And why would he make us suffer like this? We are on the streets. We have nothing to eat. We cannot make our ends meet. And he didn't tell us, and he told you. He said, yes. She didn't believe. But he persisted for months. He said, believe me, at least एक बार वहाँ जाके देख तो लो. And ultimately she relented, and they went and they dug up, and indeed there was a treasure. And with that treasure, उनकी काया पलट होगी. Their lives changed. Suddenly they became rich. And the moral of the story is this: all of us have a treasure within us, which God has planted, but did not tell us. And that treasure is the mindset. That is the billionaire mindset which each one of us have. This is not genetic. This is not someone who is a billionaire, his son becomes a billionaire. Each one of us has this treasure, and all of us, we need to dig that treasure for ourselves and then share it with the world, which all of us are doing right here. So congratulations to. ऐसा मैं अभी बीच में चला गया था और स्पीक ओवर हो गया. So कई तरह की चीजें होती हैं. So these are known as real time experiences, and we all have to learn from these experiences. Now again coming to the point, एक छोटी स्टोरी मैं शेयर करता हूँ, जस्ट इस बुक से रिलेटेड है, तभी मैं शेयर कर रहा हूँ कि when I started journey of billionaire mindset book, कई ग्रुप में इस कंटेंट को डाला, इन द सेंस कि इसके इनविटेशन को डाला कि आप इसके लिए कंटेंट दो. So many have called, especially since I am not a billionaire, so I can't give you content for this. कुछ ने तो, मुझे ग्रुप का नाम याद नहीं आ रहा, उस ग्रुप में मैंने डाला था अराउंड 240 मेंबर्स. नाम याद आ गया, मैं रिवील नहीं करूंगा क्योंकि हो सकता है उस ग्रुप के कुछ मेंबर यहाँ हो और उनको शायद बुरा लगे. उनमें से जो ग्रुप का एडमिन था, उन्होंने बोला नन ऑफ अस, देखो कितनी ऑथोरिटी के साथ वो बोल रहा है. ही इज ओनली एन एडमिन ऑफ दैट ग्रुप हैविंग 240 मेंबर्स, एंड ही सेड नन ऑफ अस इज हैविंग बिलियनियर माइंडसेट. At the same time, I exit from that group. एक व्यक्ति बोल रहा है कि इनमें से कोई भी बिलियनियर माइंडसेट का नहीं होता. My friends, बिलियनियर माइंडसेट जो है वो आपके माइंड में है. कोई भी व्यक्ति पैदा होते ही अमीर नहीं बनता है. You have to struggle. You have to face challenges. And time comes and you become billionaire. मेहनत लगती है, कंसिस्टेंसी चाहिए, and sure your mind set must be that type of mindset. Just for example, आप किसी भी बड़ी कंपनी को देख लो, जब वो स्टार्ट हुआ था तो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट हुआ था. Even all the companies except some names, obviously मुकेश अंबानी जी का नाम यहाँ पर लूंगा, वो बचपन से ही और पैदा होते ही बिलियनियर थे. ऐसे भी कई सारे हैं.
व्हाट अबाउट धीरूभाई अंबानी? उन्होंने तो जीरो से स्टार्ट किया था। एंड देयर आर सो मेनी। सो ये आपका माइंडसेट है जो आपको बिलियनियर बनाता है। एंड होप फ्रेंड्स फ्रॉम ऑल ऑफ द वर्ल्ड, all of the cities, thank you all of you for joining. MS Talks India. Who is make and the decision, the thinking जो हमने सोची है ऑथर शहरी ने कि 2030 तक 2030 तक 1 मिलियन पब्लिक स्पीकर तैयार करने हैं हमने। और उसके लिए हमारे ऑथर शहरी जो आपके सामने बोल चुके हैं, उन्होंने बताया है, तो मैं उस ऑर्गेनाइजेशन में उस के साथ काम करता हूँ। दैट इज द इंट्रोडक्शन टुडे। अदरवाइज आई एम ए प्रैक्टिसिंग लॉयर एट दिल्ली हाई कोर्ट एंड डूइंग मेनी अदर थिंग जॉब। I have worked in UNESCO, UNO for 16 years, travel around the world, seen many ups and downs in my life. और मैं आज और कुछ नहीं बोलूँगा। आपने बड़े बड़े राइटर्स को सुना, बड़े बड़े स्पीकर्स को सुना। I have lot of experience. मैं कुछ और सब्जेक्ट पे नहीं बोलूँगा। मैं सिर्फ एक बात को बोलूँगा, कोई भी चीज़ करने के लिए, कोई भी काम शुरू करने के लिए आप में सिर्फ एक काम होना चाहिए, पॉजिटिविटी। If you have a positive thinking in your mind before starting anything, no one can stop you to finish that job or work, writing का हो, किसी किस्म का हो, in a positive way. अभी हमारे सामने ये राइटर बैठे हैं, इनका नाम भूल गया, सूद साहब। तो इन्होंने अपनी एज बताई तो मैं भी पीछे खड़ा था। इन्होंने मेरी एज पूछेंगे तो क्या होगा, तो हम भाई भाई हैं। हाँ, यंग आदमी सोचेंगे ये 12-15 साल का लड़का 74 साल बोल रहा है। Anyway, I have a lot of experience. So मैंने कहा मेरी एज का आदमी बैठा हुआ है। Anyway, तो या उसके देख, मैं बात कर रहा था पॉजिटिविटी की। पॉजिटिविटी है जो आज मुझे, मैं अपने बारे में 2 मिनट बताऊंगा। मेरी बड़ी लंबी कथा है, 75 साल की, 74 साल की बड़ी लंबी कथा होगी। I was born in Himachal Pradesh in a very small village. In a very small village where there was no road, no electricity, everything, nothing. I passed my matriculation examination from there without